Yeah, hello everyone. Today we are going to start with a topic called chemical kinetics. Now, chemical kinetics means chemical out here means chemical reaction, and kinetics means speed, rate of reaction. So, we say chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction. So, what is chemical kinetics? It is a branch of physical chemistry which deals with study of rate of chemical reaction. Okay, now why do we have to study the speed of reaction? अगर हमने रिएक्शन की स्पीड नहीं मालूम है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? रिएक्शन हो रहा है वही बहुत है ना. अगर वो स्लो है या फास्ट है उससे क्या फायदा होने वाला है? कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाई टू स्टडी द स्पीड ऑफ रिएक्शन? क्या फायदा होगा उससे? Unmute and give me your answer. Why do we know? Why do we want to calculate the speed of reaction? अगर नहीं पता तो क्या होगा? No one. If it's Yeah. we want it to go faster, we can add catalyst or something. And if we want the process to go slow, like rusting, we can do something about it. So we need to know what the actual level is so that we can make changes in it. Okay, great. See, by calculating the speed of reaction, we can alter the speed of reaction. We can make it very slow or very fast. Okay. May the reaction does not take with the speed what we want. For example, we are manufacturer. Okay. So whenever anybody comes to us and he places an order, the first thing he will ask, "Okay, delivery kab hogi?" Now as a production team, as a producer, yeah, manufacturer, most of the things what we produce deals with chemicals. जो भी चीज है हमारे आजू बाजू सब चीज केमिकल से बनी हुई है. ओके, या प्लास्टिक पेपर जो भी ले लो. तो अगर वो रिएक्शन की स्पीड ही हमको नहीं पता है तो हमको कैसे पता चलेगा कितना प्रोडक्शन होगा एक दिन में? सो टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे आयशा ने बताया, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा रिएक्शन की स्पीड बढ़ाओ. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जहां हम चाहेंगे वो स्लो भी हो तो अच्छा होता. जैसे एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयन. ओके, फिर जैसे रस्टिंग ऑफ आयन है, लालू तू इंटरनेट को बंद करे. कैन यू ऑल हियर मी? हेलो. Yes, sir. Yeah, so it is not necessary that we always want the reaction speed to increase, but there are certain times where we want the speed to be decreased also. Okay, so by calculating the speed of reaction we can do that, and chemical kinetics help us to calculate the speed of reaction. Now what are applications of chemical kinetics will do? It helps us to determine the rate of reaction. It helps us to understand the factors which affect the rate of reaction: temperature, pressure, concentration, various factors. Then using laws and principle we can alter the speed of reaction. It also helps us to understand the mechanism of reaction. Now see, just now we did SN1 and SN2 mechanism in the previous chapter. तो वो SN1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्या है, ये एक्चुअली हम ये चैप्टर में लर्न करेंगे. तब तुमको पता चलेगा ज्यादा मैंने उसको 1 क्यों बुलाया, 2 क्यों बुलाया. सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर आउट हियर. तो रिएक्शन अलग अलग स्टेप में होता है, उसमें स्लो स्टेप क्या होती है, फास्ट स्टेप क्या होती है. सो ऑल दैट विल अंडरस्टैंड आउट हियर. सो क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड गिव इट्स एप्लीकेशन. हम लोग बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of rate of chemical reaction. What are its application?
It helps us to determine the rate of reaction. It helps us to understand the factors affecting rate of reaction. Using laws and principles of chemical kinetics, we can alter the rate of reaction, and it also helps us to understand mechanism of the reaction. Okay. Now chemical reactions are classified into three types: slow reaction, fast reaction, ज्यादातर ionic reaction like neutralization. एक एक ड्रॉप डालोगे वॉल्यूमेट्रिक में, एक एक ड्रॉप डालते हो और रिएक्शन होता जाता है. तो ज्यादातर आयोनिक रिएक्शन, सॉल्ट, एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर, ऐसे टाइप के रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं. ओके. एंड मॉडरेट रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर में पानी डालोगे तो विल गेट एसिड एंड अल्कोहल. इट इज अ मॉडरेट रिएक्शन. सो reactions are basically classified as on the basis of speed as slow reaction, fast reaction and moderate reaction. Chemical kinetics basically deals with moderate reaction. Now do not copy any notes. ये सारे notes मैं तुमको WhatsApp पे भेजने वाला हूँ, मतलब written ones. So you can copy from there. So don't copy anything from here now. Okay. So I'll repeat. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the rate, deals with the study of rate of chemical reaction. What are applications of chemical kinetics? It helps us to determine the rate of reaction. It helps us to understand the factors affecting rate of reaction. Using laws and principles of chemical kinetics, we can alter the rate of reaction, and it also helps us to understand the mechanisms of the reaction. Then on the basis of speed, reactions are of three types: slow reaction, fast reaction and moderate reaction. Chemical kinetics basically deals with moderate rate of reaction. Now अभी इतनी देर से बता रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? स्पीड, हाउ डू वी कैलकुलेट स्पीड जनरली? इट इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? एनीवन? How will you calculate speed of chemical reaction? Amount of product used, reactant used per unit time. Very good. कितना reactant यूज हो रहा है या तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है. अभी कितना मतलब विल टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, कितना कम हुआ इन अ गिवन टाइम, और कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा इन अ गिवन टाइम. Okay. So suppose reaction is going from A to B. So if you want to calculate rate of reaction, we calculate decrease in concentration of A in given time, or we can calculate how much B has increased in a given time. अभी देखो, समझो A 100 है, 2 सेकेंड के बाद A 80 हो गया. So what is difference in A? Difference in concentration of A. Initially we took A 100. After 2 seconds A हो गया 80. तो A कितना कम हुआ? 20. Sir, 20. हाँ, आंसर इज -20. रिएक्टेंट हमेशा कम होते जा रहा है ना. फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट करो. 80 माइनस 100, तो आंसर आएगा -20, और नीचे टाइम है 2. ओके. तो माइनस माइनस ऑफ माइनस, तो इसलिए हम लोग एक और एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कम होता जाता है. तो माइनस और माइनस विल बिकम प्लस. तो हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो चेंज इन ए अपॉन चेंज इन टाइम. बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि रिएक्टेंट का हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए हम आगे माइनस लगाते हैं. फिर बी का कैलकुलेट करना है, तो कितना बी बढ़ा इन गिवन टाइम. अभी ए अगर 100 से 80 हुआ तो बी कितना हुआ होगा? How much has B increased? 0 to 20. हाँ, 0 to 20. जब A 100 था तब B 0 था, क्योंकि इनिशियली हमने रिएक्शन शुरू किया. जब A 100 से 80 आया तो B 0 से 20 जाएगा, तो डिफरेंस उतना ही आएगा. तो जनरली वी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. आंसर विल बी सेम. ओके.
So how will you define rate of reaction? Rate of reaction is defined as decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time. और इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. पर मोर स्पेसिफिकली हम अगर बोलना चाहेंगे तो इट विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. और उसका नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. ये मैंने 11th में आयोन केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने किए. स्क्वायर ब्रैकेट व्हेनेवर वी राइट स्क्वायर ब्रैकेट मींस concentration upon delta t. Delta t मतलब change in time. Now what is unit of rate of reaction? चलो rate of reaction की यूनिट बता सकते हो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे यूनिट? मोल पर सेकंड. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर. हाँ, मोल पर लीटर. इसको हम या तो लिख सकते हैं मोलार, कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं मोलारिटी, कैपिटल एम, मोलार पर सेकेंड. बट मोलारिटी को हम लिखते हैं मोल पर लीटर, तो इसलिए उसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड. 1 लीटर कितना डीएम क्यूब होता है? 1 लीटर 1 डीएम क्यूब. ओके, तो अभी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. समझ आया? 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब, तो पर लीटर है तो पर डीएम क्यूब ऐसे हो जाएगा. सो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. और प्रेशर के टर्म्स में ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो प्रेशर के टर्म्स में इसकी यूनिट हो जाती है एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. ओके, तो एमसीक्यू में यही 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछते हैं व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो आंसर आएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. इन टर्म्स ऑफ प्रेशर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी एक लिख सकते हो, मोलार पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, तीनों भी चलेंगे क्योंकि मोलार इज नथिंग बट मोल पर लीटर एंड 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब. तो हम इसको कोई भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव और पॉजिटिव और बोथ, तो आंसर क्या लिखोगे? Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव. वेरी गुड. रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या समझाया, कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ओके, सो कीप इन माइंड दैट. तो यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ और नन ऑफ दिस, तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. रेट ऑफ स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट. अभी 2 तरह के रेट होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट. अभी समझो तुम चर्च गेट से बोरीवली जा रहे हो, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाड़ी में, कार में. तो अगर तुमने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल किया तो तुम्हारी कार की स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? What will be your average speed if you cover 30 kilometers in 1 hour? सेकंड. Yeah, 30 किलोमीटर पर आवर. हाँ, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना. पर अगर तुम जब चर्च गेट से बोरीवली जा रहे हो तो पूरे रास्ते तुम्हारी कार की स्पीड 30 ही थी कि ज्यादा थी कि कम थी? Acceleration भी है ना, acceleration. कितना भी हो सकता है. कभी 100 भी होगी, कभी 20 भी होगी, कभी 10 भी होगी. समझ आ रहा है? तो वो स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, उस वक्त. और पूरा रिएक्शन खत्म होने के लिए जो टाइम लगा वो एवरेज. पर पूरे रिएक्शन के दौरान स्पीड कभी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है. तो वो स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस वक्त. तो 2 तरह के रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं. एक होता है एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज. और जिस वक्त एनी मोमेंट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के लिए, अभी 100 है, अभी 80, अभी 20,
तो जो स्पीड हमारे रास्ते में चेंज होती जा रही है, that speed is called instantaneous rate. So there are two type of rate of reaction, average rate and instantaneous rate. अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम लोग मुझे बताना कि इसके 4 ऑप्शंस दूंगा, कौन सा सही होगा. केमिकल रिएक्शन में जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, स्पीड, रिएक्शन की स्पीड कैसे होगी? पहले बहुत स्लो होगी, फिर बढ़ती जाएगी, पहले बहुत ज्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी. थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहती है, या तो कभी भी बढ़ेगी कभी भी कम होगी. आई विल रिपीट ऑल द 4 ऑप्शंस. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज option A very high and then decreases, option B very low and then goes on increasing, it remain constant throughout, or fourth option is it may increase or it may decrease. What will be your answer? Speed decreases. Which one? A. A. Speed decreases. Yeah, very good. Yes, sir. देखो इनिशियली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट पास में बहुत ज्यादा है अंदर कंटेनर के अंदर, तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी. तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी. वेरी गुड. सो in general, not every time, in general the rate of reaction is generally very high and slowly it goes on decreasing. Is it clear? देखो अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? The rate of reaction calculated over a large interval of time. या तो तुम बोल सकते हो a time taken for the reaction to complete. पूरा reaction complete होने के लिए rate of reaction divided by time, total time taken. Okay, change in concentration, total change in concentration upon total time. तो वो होगा एवरेज रेट. या तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम. ये लार्ज इंटरवल मतलब ये 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. कभी कोई रिएक्शन 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में भी खत्म हो जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट it will be a large interval for that particular reaction. Okay, so what is average rate of reaction? It is the rate of reaction calculated over a large interval of time. Now how will you calculate this rate of reaction using graph? तो हम लोग बोलते हैं plot a graph of concentration of reactant against time. कैसा ग्राफ मिलेगा बताओ? अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? Yeah, anybody, any idea? No one. Straight line with negative slope. Straight line with negative slope. Okay, somewhat you're correct, but it won't be a straight line, we'll get a curve. Okay, concentration of reactant time के साथ साथ कम होते जाएगा, so we'll get a curve like this. Okay, so here it won't be uniformly नहीं decrease होगा, it will randomly decrease. I told you कि concentration of reactant पे depend करता है, तो reactant molecule कितने पास में है, पर जैसे जैसे concentration of reactant कम होते जा रहा है तो speed definitely कम होती जाएगी. तो time के साथ साथ reactant का concentration कम होगा, but not uniformly. Okay, तो क्वेश्चन आता है what is average rate of reaction, how will you calculate using graph? तो हम उसमें लिखेंगे plot a graph of concentration of reactant against time. We get a curve. Take any 2 points on this curve. Find their corresponding coordinates CR1 when time is T1 and CR2 when time is T2. 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, फिर एक थोड़ी देर के बाद. ये कॉन्सेंट्रेशन R1 जब टाइम T1 है और कॉन्सेंट्रेशन R2 जब टाइम T2 है, और फिर इनका डिफरेंस फाइंड करो. CR मैंने अभी जैसे बताया 100 - 80 और डिफरेंस हुआ 2 सेकेंड का, ऐसे. तो CR2 - CR1 अपॉन T2 - T1. ओके, और बाहर हमेशा माइनस लगाना है, जब भी रिएक्टेंट लोगे तो बाहर हमेशा माइनस लगेगा, तो अल्टीमेटली रेट हो जाएगा पॉजिटिव. और बाद में लिखना है सिमिलरली वी कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट टाइम ऑल्सो. ओके, तो हम लोग को फिर से कर्व मिलेगा. अभी कर्व कैसा मिलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज. प्रोडक्ट पहले 0 था,
और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा टाइम पास होगा तो। फिर 2 पॉइंट ले लो सेम, और ये इनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स है, और ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। Cp2 minus Cp1 upon T2 minus T1. I'll repeat the entire question and answer both. What is average rate of reaction? How will you calculate using graph? The average rate of reaction is defined as rate of reaction calculated over a large interval of time. To calculate average rate by using a graph, plot a graph of concentration of reactant against time. We get a curve. Take any 2 points A and B on this curve. Find their corresponding coordinates, CR1 when time is T1 and CR2 when time is T2, and substitute in the following formula. Similarly, we can calculate average rate of reaction also by plotting a graph of concentration of product against time. बस फिर ग्राफ ड्रॉ करना है और फॉर्मूला लिख देना है. I hope it is clear to everyone. Now next one, I told you instantaneous rate. अभी instantaneous rate क्या होता है? Rate of reaction calculated at any instant or over infinitesimal small interval of time. जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो, इनफाइनाइटेसिमल, याद है मैंने इनफाइनाइटेसिमल हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स में भी यूज किए थे. जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स द डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. तो यहाँ पे एनी इंस्टेंट मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड. मैंने बोला जब गाड़ी चला रहे हो तो इस वक्त देखो नीचे उसके अंदर स्पीडोमीटर पे अभी 100 पे, अभी 80 पे, अभी 20 पे, जैसे जैसे स्पीड फ्लक्चुएट हो रही है. So that moment your speed is, that is called instantaneous rate. अभी क्वेश्चन आता है what is instantaneous rate of reaction? How will you calculate using graph? तो हम बोलेंगे it is defined as rate of reaction calculated at any instant or over infinitesimal small time interval. To calculate using graph, we plot a graph of concentration of reactant against time. We get a curve. अभी फिर से कर्व मिलेगा. There is a mistake out here. We get a curve and take a point X on this curve. Any point X on this curve. Okay, here there is a curve, but the color is different, so it has not been visible. We'll get a point X on this curve and draw, find the slope of this and draw tangent to the X passing through the point X. Tangent to the curve passing through point X. And value of slope of this tangent will be instantaneous rate. I'll repeat. Plot a graph of concentration of reactant against time. We will get a curve. Now take a point X on this curve. Draw a tangent to the curve passing through point X and find the slope of this tangent. The value of slope is instantaneous rate. Similarly, we can plot a graph of concentration of product against time. Again, we'll get a curve. Take a point X on this curve. Now draw a tangent to the curve passing through point X and find the slope of this tangent. The value of slope corresponds to instantaneous rate. सबको समझा ना? I'll repeat once again. Huh? What is instantaneous rate? The rate of reaction calculated at any instant or over infinitesimal small time interval is called instantaneous rate. How will you calculate instantaneous rate using graph? Plot a graph of concentration of reactant against time. We get a curve. Take a point X on this curve. Draw tangent to the curve passing through point X and find the slope of this tangent. The value of slope corresponds to instantaneous rate of reaction. Similarly, we can also calculate instantaneous rate by plotting a graph of concentration of product against time. तो या तो reactant against time plot करो या तो product against time plot करो. We can calculate instantaneous rate using both. Is it clear? तो दोनों rate of reaction समझा, average rate समझा, instantaneous rate समझा. All three are clear.
Okay, we'll go to the next one now. Differential rate equation. अब एक रिएक्शन है, a times a plus b times b gives you c times c plus d times d. अभी मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना था, तो पहले मैंने क्या बताया, a to b एक टाइप ऑफ रिएक्शन दिया था, तो हमने उसमें क्या लर्न किया, कितना a कम हो रहा है इन गिवन टाइम, या तो कितना b बढ़ रहा है इन गिवन टाइम, तो हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. पर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट रेट नाउ? Yes, anybody? Come on. एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, अभी रेट कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? Concentration product, Yeah, come again. the concentration product of product and the concentration product of the reactant. Okay, मतलब पूरा दोनों A और B एक साथ गिनो कितना कम हो रहा है, और C और D देखो कितना एक साथ बढ़ रहा है. इज इट क्लियर? यस आयशा? No. देन Concentration of A multiplied by concentration of B. अच्छा, A और B का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है, कम. ओके, यस, Yes. ओके. नो, इट इज नॉट करेक्ट. अगर हमको, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, हमको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो वी कैन कैलकुलेट चेंज ऑफ एनी वन. या तो तुम ए का चेंज फाइंड करो, या तो बी का चेंज फाइंड करो, या तो तुम सी का फाइंड करो, या तो डी का फाइंड करो. ओके, कोई भी एक का चेंज फाइंड करोगे, आंसर वही आएगा. देखो फॉर एग्जांपल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड. या तो सल्फर कितना कम हो रहा है, या तो ऑक्सीजन कितना कम हो रहा है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना बढ़ रहा है, आंसर विल कम सेम. ओके, तो सबका कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, किसी भी एक का चेंज फाइंड करोगे तो आंसर तुमको मिल जाएगा. इज इट क्लियर? अगर आगे कोएफिशिएंट हुए तो क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो सब 1 1 1 1 था, पर यहाँ पे नाइट्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज 3, अमोनिया इज 2, तो अभी क्या करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को डिवाइड बाय 2 करो. डिवाइड बाय 2 करेंगे. वेरी गुड. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर अगर आगे कोएफिशिएंट होते हैं तो पर मोल के लिए, मतलब विल डिवाइड देम बाय देयर कोएफिशिएंट्स. नाइट्रोजन को 1 से डिवाइड करो, हाइड्रोजन को 3 से डिवाइड करो, अमोनिया को 2 से डिवाइड करो. इज इट क्लियर? तो जब भी आगे कोएफिशिएंट्स होंगे तो वी हैव टू डिवाइड देम बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. इन कोएफिशिएंट्स को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं. सो इन जनरल अगर रिएक्शन ऐसा हुआ, A टाइम्स A, B टाइम्स B, C टाइम्स C, D टाइम्स D, तो अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो dA बाई dt डिवाइड बाय A, dB बाई dt डिवाइड बाय B, dC बाई dt डिवाइड बाय C, एंड dd बाई dt डिवाइड बाय D. रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव. इज इट क्लियर? देखो, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट, positive represents product, divide by the corresponding stoichiometric coefficient. तो reactant के लिए हमेशा negative, product के लिए हमेशा positive, और divide by their corresponding stoichiometric coefficients. Is it clear? तो ये सबको समझा? Okay. अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस नहीं लिखोगे, सिर्फ आंसर्स लिखोगे. क्वेश्चंस तुम लोग स्पेस छोड़ दोगे. अभी फिलहाल जो भी नोट्स मैंने लिखाया, लीव 3 साइड्स, 3 पेज छोड़ दो आगे पीछे मिला के, एंड 4th पेज से शुरू करो लिखना न्यूमेरिकल 1. मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें से तुम लोग नोट्स कॉपी कर लेना. लीव 3 साइड्स ऑफ योर नोटबुक, एंड ऑन 4th साइड, 4th पेज, write down this question number 1. Don't write question, just we'll solve this question number 1. Leave the space for question itself. Write the rate expression for the following in terms of rate of consumption of reactant and formation of product. यहाँ पे खाली हमको रेट के एक्सप्रेशंस लिखने हैं.
ओके देखो, राइट द रेट एक्सप्रेशंस in the terms of rate of consumption of reactant and formation of product. अभी देखो, rate of consumption of fluorine, अभी rate of consumption of fluorine लिखना है तो क्या लिखोगे, डेल्टा F2 by डेल्टा T. अभी मैंने डेल्टा क्यों लिखा, अभी देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि तुमको एवरेज रेट लिखना है या इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तो तुम डेल्टा लिखोगे एवरेज. अगर यहाँ पे एनी इंस्टेंट या तो इंस्टेंटेनियस रेट पूछा होता तो डी लिखना है, तो एवरेज के लिए डेल्टा लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए डी लिखते हैं. ओनली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. ओके, डी मतलब स्मॉल चेंज एंड डेल्टा मतलब लार्ज चेंज. देखो रेट ऑफ, ये आंसर है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्लोरीन इज डी फ्लोरीन बाय dt. फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ClO2, अभी क्या आंसर आएगा बताओ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ClO2 क्या लिखोगे, एनीबडी? delta ClO2 upon 2 times delta dt. हाँ, दैट इज रॉन्ग. डेल्टा ClO2 लिखना है पर नीचे 2 डेल्टा T नहीं लिखना है. हम लोग को खाली ClO2 कितना कंज्यूम हो रहा है वो पूछा है. जब हमको रेट कैलकुलेट करना होता है तब कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. यहाँ पे तुमको खाली पूछा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ClO2 बताओ, तो ClO2 कितना कंज्यूम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ClO2 अपॉन चेंज इन टाइम, तो नीचे कोएफिशिएंट से मत डिवाइड करो. अभी जैसे FClO2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ FClO2. अभी इसका आंसर आएगा डेल्टा FClO2 अपॉन डेल्टा T. नीचे 2 से नहीं डिवाइड करोगे. 2 से कब डिवाइड करोगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है. अभी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हम सबको इक्वेट करेंगे. जब सबको इक्वेट करते हैं तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव फ्लोरीन के लिए, ये ClO2 के लिए भी आगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव मिसिंग है, एवरीबॉडी मेक इट नेगेटिव. और ये FClO2 ऐसे ही लिखना है पॉजिटिव. Can't copy down. These are the answers. ये आंसर है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्लोरीन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ClO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ FClO2 में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर. ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस ही रहेगा. तो 2 मिस्टेक्स है यहाँ पे, ये प्लस करो और यहाँ पे माइनस करो. सबको समझा ये? जब इंडिविजुअली कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट का पूछा, यहाँ दिया हुआ है तो उसके नीचे कोएफिशिएंट नहीं डिवाइड लिखना है. पर जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं कंपेयर करते वक्त, तब हम कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. ओके okay, we'll take a break of 10 minutes after copying this. Anybody finish copying?